discuss about some terms that are related to the dielectrics. First of all, we will discuss what are dielectrics. Students, dielectric or electrical insulators are those substances which do not allow electric current to pass, but they allow electric effect to pass through them. For example, here are some dielectric mediums and dielectric strength for a given medium. For example, for vacuum, dielectric strength is infinity. For air, this is 0.8. For paper, this is 14. For porcelain, this is 4. For water, this is 80. For mica, it is 160. When the dielectric is placed in an electric field, the electrons and protons of its constituent atoms reorient themselves, and in some cases molecules become similarly polarized. As a result of this polarization, the dielectric is under stress and it stores energy that becomes available when the electric field is removed. This is the basic thing about student. First of all, we discuss about polar molecules. A molecule in which center of positive charges does not coincide with the center of negative charges is called a polar molecule. कहने का मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल लिया H2O का. ओके, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? एक पोलर मॉलिक्यूल का. पोलर मॉलिक्यूल does not have symmetrical shape. For example, HCl, H2O, NH3, CO2, alcohol, etc. example of polar molecules. अब now we check what is the effect of electric field on polar molecule. Simply, we can say that in the absence of external electric field, every polar molecule have a dipole moment, but they randomly oriented, so the net dipole moment due to all these molecules is 0. So in the absence of external electric field, the permanent dipoles of the molecule orient in random direction and hence the नेट डायपोल मोमेंट इज 0. कहने का मतलब कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आपने उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ हो तो पोलर मॉलिक्यूल के पास खुद का एक डायपोल मोमेंट तो है, लेकिन वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, तो उनका जो अगर वेक्टर सम करेंगे डायपोल मोमेंट का वो 0 आएगा. बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए क्या हो रहा है. जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डायपोल अलाइन हो जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायपोल पे टॉर्क वर्क करेगा. टॉर्क क्या करेगा? उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर देगा. हेंस ए नेट डायपोल इज डेवलप्ड. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द डायपोल ओरिएंट देमसेल्फ in a regular fashion and hence dipole moment is induced. Complete alignment is not possible due to thermal agitation. Okay. Now we study about non-polar molecules. Simply, a molecule
in which the center of positive charges coincide with center of negative charges is called a non-polar molecule। कहने का मतलब जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करता है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर molecule। Non-polar molecule has symmetrical shape. For example, N2CHO4, O2, C6, H6, etc. are example of non-polar molecule. Now we check what are the effect of electric field on a non-polar molecules. You know that non-polar molecule are those molecules in which the center of positive and negative charge coincide. So in the absence of electric field, the net dipole moment is 0. So we can say that in the absence of external electric field, the effective positive and negative centers coincide, hence dipole moment not formed and dipole moment is 0. But when we apply external electric field, let's see what happen। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया along the direction of dipole, along the direction of electric field। When electric field is applied, the positive charges are pushed in the direction of electric field and the electron are pulled in the direction of opposite to the electric field due to separation of effective centers of positive and negative charges, dipole is formed। कहने का मतलब चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायपोल नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे डेवलप्ड नेट डायपोल मोमेंट। दिस डायपोल मोमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, ओके। यू नो दैट व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे डेवलप नेट डायपोल मोमेंट। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Important thing is that the magnitude of dipole moment depends upon applied external electric field. So, it is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of electric field। कहने का मतलब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है उसको आपने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायपोल के जो दो साइड होंगे दोनों साइडों पे अपोजिट चार्ज आएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। चलिए इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स। ओके, सो वन प्लेट इज प्लस सिग्मा हैविंग चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी and second plate having charge density minus sigma. So electric field between these two plates will be sigma upon epsilon naught, and we place a dielectric between these plate. So the dipole moment of dielectric experiences torque and align themselves according to this figure। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो अप्लाइड फील्ड था वो था इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर, यानी ये प्लेट थी पॉजिटिव, ये प्लेट क्या थी नेगेटिव। तो जो डाइलेक्ट्रिक के डायपोल मोमेंट थे उन्होंने खुद को ऐसे अलाइन किया कि जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी तरफ कौन सा आया, डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव पार्ट आया, और जो प्लेट नेगेटिव थी उसके पास डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव पार्ट आया। तो पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये ऑटोमेटिक इंटरनली क्या होगी, अलाइनमेंट
हो गई। अब यहाँ देखिए चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आगे प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप देखिए कि डाइइलेक्ट्रिक पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज बचेगा ओनली, और यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक के दोनों अपोजिट फेसों पे अपोजिट इक्वल चार्ज डेवलप हो गया, जितना माइनस था उतना प्लस आ गया, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, अब नाउ जब ये एक देखिए यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ए नेट डायपोल मोमेंट इज डेवलप्ड। इसको हम कहेंगे इंड्यूस चार्ज, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हुआ था, एक क्या होता है, पॉजिटिव, इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो इसका मतलब एक डायपोल मोमेंट भी बनेगा इधर, तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस डायपोल मोमेंट। और जो चार्ज की डेंसिटी आएगी उसको हम कहेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो फिलहाल इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट दैट इक्वल टू EP इज इक्वल टू सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे दो तरह के फील्ड हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अप्लाइड फील्ड था, और सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज था। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric will be E is equal to E outer minus EP, that is sigma upon epsilon naught minus sigma P divided by epsilon naught। दोनों में से कॉमन है कि epsilon naught, सिग्मा माइनस सिग्मा P। तो कहने का मतलब डाइइलेक्ट्रिक जब प्लेस करेंगे तो इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लेस देन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात क्लियर हो जाएगी आपको कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगा वो हमेशा कम होता है कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कम क्यों होगा कि जो इंड्यूस चार्ज आया था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए ये अप्लाइड फील्ड है इस साइड में, और जो इंड्यूस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड से इस साइड, क्योंकि चार्ज कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास अप्लाइड फील्ड आया। इतना कंफर्म था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लेस होगा कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे E आउटर को शो किया है एक्सटर्नल फील्ड को, और E हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लेट अस कंसीडर नेक्स्ट टर्म, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। You studied that when we place a dielectric in external field, the electric field inside dielectric will be less compared to applied electric field। अभी जो आपने लिखा था, हमने स्टडी किया था कि E नोट था अप्लाइड फील्ड, E नोट माइनस EP जिसको आपने E लिखा था वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। So the ratio of applied field divided by the net electric field inside the dielectric gives the value of dielectric constant। तो ये लिखा है यहाँ पे, the ratio of applied electric field instant to reduced value of electric field intensity E on placing dielectric between two oppositely charged plate is called dielectric constant K। कहने का मतलब जो रेशियो होगा कि अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाय रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, जो दोनों का रेशियो आया उसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर हमारे पास एक टर्म और आती है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या होता है कि हमने कहा कि इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ। जब इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ तो दोनों चार्ज के बीच में कुछ तो कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो हम कहेंगे कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। तो उस इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में, इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड per unit volume of a dielectric
when placed in an external electric field is called polarization density. It is denoted by capital P. फिर हमारे पास एक बात आई थी कि चार्ज डेंसिटी होती है, तो हमने ये कहा था कि जो इंड्यूस चार्ज हुआ था उसकी वैल्यू QP है। Q चार्ज था ड्यू टू पोलराइजेशन, इंड्यूस चार्ज हमने इसको कहा, और पर्टिकुलर जो प्लेट डाइलेक्ट्रिक था उसका एरिया कितना जूम किया आपने A, तो जो वैल्यू होगी QP यानी इंड्यूस चार्ज डिवाइड बाय एरिया, उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहां हम बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी की। वो क्या होती है अभी बताया था आपको, डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आपने कहा कि जो इंड्यूस चार्ज हुआ था उसकी वैल्यू QP थी, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द टू चार्जेस D, तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ QP इंटू D, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, D तो डिस्टेंस थी बिटवीन, कह सकते हैं थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की, A क्या था एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू डिस्टेंस, D से D कैंसिल, तो पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, चार्ज डेंसिटी के इक्वल। ओके, now the next term is electric susceptibility. What is the electric susceptibility? As you know that the polarization is depend upon resultant electric field E. So polarization is proportional to the resultant electric field E existing in the dielectric. कहने का मतलब जो डायपोल में P डेवलप होगा वो डिपेंड करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रिजल्टेंट फील्ड कितना है। सो P वेक्टर प्रोपोर्शनल टू द E वेक्टर। जब ये साइन रिमूव करेंगे तो एक टर्म आएगी एप्सिलॉन नॉट एक्साई। एक्साई हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। सो वी कैन डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन K एंड एक्साई। कैसे करेंगे देखिए, we know that E is equal to E नॉट माइनस EP, हमने पढ़ लिया था पहले। EP की वैल्यू क्या थी, सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट थी। सिग्मा P की वैल्यू अभी बताया था जैसे पिछले वाले टॉपिक में, किसके इक्वल है, P के इक्वल थी पोलराइजेशन के, तो आपने वैल्यू पुट कर दी है। जब आपने यहां रखा तो लिखा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो P की वैल्यू थी वो गिवन है पहले हमारे पास, एक्साई एप्सिलॉन नॉट और E, वो आपने यहां प्लेस की, इससे ये कैंसिल। ओके ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इस E को आप इस साइड ले गए, या सब में किसको डिवाइड किया, E से डिवाइड कर दिया, तो E डिवाइड बाई E 1 हो गया, E नॉट डिवाइड बाई E ये आ गया, E से डिवाइड होने से बचा एक्साई, इसको हम कहते हैं K। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्साई। ये है रिलेशन बिटवीन K एंड एक्साई।